Hello everyone, welcome to Olive Board. This is the part 4th of RBI Circulars April 2025. If you are preparing for your RBI Grade B examination, you can also start your journey with Team Olive Board and you can download our application to get this PDF. You can also download the previous year question from our application. The links are in the description. So let's start the discussion. The first thing we'll be discussing about housing finance for UCBs, right? So here UCBs enable these directions basically enable the UCBs to play a strong role in affordable housing finance, especially for the weaker section of the society. So housing finance to certain groups are under classification of PSL norms as well, right? So we'll be discussing about that as well. Basically the PSL guidelines are already there, right? So bigger UCBs with surplus funds may engage more actively. Eligible borrowers, who are the eligible borrowers? A UCB can provide loan to the following borrowers. It can be an individual, housing board for economic weaker section, LIG, MIG, existing homeowner for repairs or upgrades. So you can avail top-up loans as well for repairs and things like that, right? So these are the eligible parties that can take loan from UCBs. So eligible purpose, what can be the eligible purpose for housing loan? Construction or purchase of houses or flats, repairs, addition and renovation, slum rehabilitation under the government guarantee, projects in settlement, township, market, school, etc. So all the construction related stuff related to the housing loans and some other projects including the markets and schools are also permitted here. Key terms for the housing loan limit based on the UCB tier. So if your UCB tier 1 is there, then the maximum loan per dwelling will be 60 lakh rupees. Tier 2 1.4 crore, tier 3 2 crore and tier 4 3 crore. Right, so it's a limit based criteria for loans as per the tier in which UCB is falling. Subject to the single borrower limit, 15% of tier 1 capital. So you should not exceed 15% of your tier 1 capital loan to a single borrower. And if I talk about group exposure limit, then 25% of the tier 1 capital is the limit. So you should be knowing these limits, right? ये limit आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए. इंटरेस्ट प्रीपेमेंट एंड रीसेट की बात करें अगर, तो इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा. कोई भी फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी ऑन फ्लोटिंग रेट होम लोन्स एंड ECBs मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट EMI बफर टू हैंडल द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रीसेट्स. अगर कोई इंटरेस्ट रीसेट्स हो रहा है तो आपको EMI बफर उतना रखना पड़ेगा कि वहां पे कोई इशू नहीं है. UCBs must provide adequate EMI buffer and then must comply with the floating rate reset circular. So whatever circulars are there related to floating rate reset circular, they need to comply with it. That's obvious. Penal charges only levied for material breach of house loan terms, right? Not as extra interest, but it will be only levied if there is a material breach. Governed by the RBI fair lending प्रैक्टिस, तो उसके लिए भी अलग से गाइडलाइंस बनी हुई है, उसके थ्रू गवर्न होने वाला है. की फैक्ट स्टेटमेंट, तो की फैक्ट स्टेटमेंट भी इशू की गई थी, राइट, एज पर अप्रैल 2024 सर्कुलर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द लेंडिंग प्रैक्टिसेस. सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है? तो देखो, हाउसिंग लोन की सिक्योरिटी एक तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो गया, गवर्नमेंट गारंटी हो गया अगर अवेलेबल है तो. कुछ ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटीज जैसे कि LIC, गोल्ड शेयर्स भी हो सकती है, पर अगर रिक्वायर्ड है तो ही, वो भी स्पेशल केसेस के अंदर, राइट. UCBs must release the property document within 30 days if the loan is closed. So if the concerned person has closed the loan, they need to release the property documents within 30 days. अब लोन का टेन्योर कितना रहने वाला है? तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 20 ईयर्स का टेन्योर रह सकता है और मोरेटोरियम भी अलाउड है टिल कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, 18 months फ्रॉम द फर्स्ट डिसबर्सल, और बोरोवर का ऑप्शन और एट द बोरोवर्स ऑप्शन विच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे मोरेटोरियम अलाउ किया जाएगा. अच्छा, मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 20 ईयर्स हो सकता है. फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें तो दे आर ग्रेजुएटेड इंस्टॉलमेंट्स. मतलब यहाँ पे देखो, UCBs कैन ऑफर लो इनिशियल EMIs. अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि उनकी स्टार्टिंग EMIs कम रहे तो वैसी भी चीज यहाँ पे हो सकती है और बाद में वो लेटर ऑन
इंक्रीज हो जाएंगी। रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन की बात करूं मैं एक्सपोजर लिमिट्स की, सो हाउ मच एक्सपोजर, देखो एक्सपोजर क्या होता है, रिस्क कितना लिया जा सकता है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन के अंदर वो भी नॉन पीएसएल वाला लेस दैन इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल, तो टोटल एडवांसेस का 25% तक आप कहां से दे सकते हो, रेजिडेंशियल हाउसिंग लोन में दे सकते हो। रियल एस्टेट रिलेटेड है तो फिर मैक्स टू मैक्स 5%, लेस दैन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल एडवांस, राइट। और ये दोनों फंड और नॉन फंड एक्सपोजर दोनों पे ही अप्लाई होते हैं। इसका एक्सेप्शन भी है, लोन टू स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर फॉर मटेरियल, अगर कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को आपने कोई लोन दिया है सो वहाँ पे मटेरियल्स के लिए, सो वहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन लग जाता है, उस केस में ये वाली लिमिट से बाहर भी कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, एडिशनल लोन जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप अप लोन बोलते हैं, वो भी दिया जा सकता है। अगर मेट्रो है तो 10 लाख तक और अदर एरिया है तो 6 लाख तक। मस्ट असेस द कॉस्ट एंड कैपेसिटी विथ इंजीनियर सर्टिफिकेट, अगर टॉप अप लोन चाहिए तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर सर्टिफिकेट लगेगा, उससे आप कॉस्ट और कैपेसिटी देख पाओगे। लेंडिंग टू हाउसिंग बोर्ड्स, सो इट इज परमिटेड फॉर इन स्टेट हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड को भी लेंडिंग यहाँ परमिटेड है। रिकवरी परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी, उनकी रिकवरी परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए। एंड लोन टर्म्स आर एट द बैंक डिस्क्रिशन, तो बैंक के डिस्क्रिशन पे लोन की टर्म्स आपस में डिसाइड की जा सकती है। बिल्डर को या कॉन्ट्रैक्टर को भी लोन दे सकते हैं क्या, जनरली देखो ये अलाउड नहीं होता, इससे ड्यूल फाइनेंसिंग हो सकती है। देखो समझना, मैंने किसी बिल्डर को लोन दिया, एज ए यूसीबी मैंने किसी बिल्डर को लोन दिया, अब वो आगे मकान बेच रहा है तो सामने वाला जो पर्सन है जिसको बेच रहा है वो भी तो चाहेगा उसके ऊपर लोन लेना, राइट। तो यहाँ पे ड्यूल फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम आता है, सो जनरली इसको डिस्करेज किया जाता है। अलाउ हो जाता है व्हेन नो एडवांसेस फ्रॉम द बायर, द बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर हैज नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ एडवांसेस फ्रॉम द बायर, इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट, और स्ट्रिक्ट हाइपोथिकेशन है मटेरियल का, एंड ओनली 40-50% मार्जिन गया है, 40-50% लोन में मार्जिन है, तो उन टर्म्स पे हो सकता है, पर दैट टू इन एक्सेप्शनल केसेस, जनरली डिस्करेज किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ लैंड, अब लैंड का कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, तो करंट मार्केट प्राइस पे किया जाएगा, एक्सपेक्टेड पे नहीं किया जाएगा कि देखो जब तक मैं 2 साल तक घर बनाऊंगा तब लैंड की इतनी वैल्यू हो जाएगी, नहीं, आज की डे में क्या वैल्यू है वो करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू किया जाएगा। कोई भी फंडिंग नहीं मिलने वाली फॉर लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करने के लिए यहाँ पे आप यूसीबी से इस वाले के अंदर सर्कुलर में लोन नहीं ले सकते। नो अपफ्रंट डिसबर्सल टू इंडिविजुअल्स वाया बिल्डर लिंक्ड स्कीम, कोई भी अपफ्रंट डिसबर्सल यहाँ पे नहीं होगा किसी भी इंडिविजुअल को वाया बिल्डर लिंक्ड स्कीम के अंदर। अब आते हैं हाउसिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो अगर आपका लोन प्रायोरिटी सेक्टर में फॉल कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर क्या, ऑलरेडी आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस बनी हुई है, उनको आप फॉलो करके ये चीजें कर सकते हो। मैंडेटरी प्रिकॉशन क्या रखना है, देखो एक तो प्रिवेंट फ्रॉड बाय मल्टीपल लोन्स, एक ही प्रॉपर्टी पे मल्टीपल लोन्स ना हो जाए, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, उसके लिए आपको वेरीफाई द सैंक्शनड बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान जो है उसको उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी देख लो, एफिडेविट ले लो, राइट। अननेसेसरी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में फंडिंग अवॉइड करो, कमर्शियल यूज वाली फंडिंग अवॉइड करो, अवॉइड कमर्शियल यूज फंडिंग इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहा है, ये चीजें आप अवॉइड करो, उनको फाइनेंस करना एंड ऑल। उसके बाद आता है नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी, सो लोन पॉलिसी शुड बी इंटीग्रेटेड एज पर दी एनबीसी गाइडलाइंस फॉर फायर सेफ्टी, सो ये सारी सेफ्टी जो बेसिकली एनबीसी के कोड के अंदर है वो आपको फॉलो करनी है। एनेक्स्चर 1 में आपका क्लासिफिकेशन दे रखा है कमर्शियल रियल एस्टेट का, और एनेक्स्चर 2 में आपका हाउसिंग लोन वेरिफिकेशन प्रोसीजर दे रखा है। अगला आता है, तो बेसिकली देखो सर्कुलर में लिमिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट, टेन्योर लिमिट्स और इन तरह की चीजें याद रखनी पड़ेगी, यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आता है अगला मास्टर सर्कुलर मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस यूसीबीज, मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस की यहाँ पे बात करिए, तो देखो दिस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हाउ दे कैन मैनेज देयर लोन एंड एडवांसेस, तो उनके लोन्स और एडवांसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा ये वाला सर्कुलर उसको डिटेल में कवर करता है। कवर्स द पॉलिसीज ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे क्या पॉलिसी बन सकती है, लोन स्ट्रक्चरिंग, मॉनिटरिंग, स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में भी ये बात करता है, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड हो गया, और उसका एंटायर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी ये वाला सर्कुलर डील करता है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, देखो यहाँ पे टर्नओवर मेथड लगता है,
टर्नओवर मेथड फॉर लिमिट अप टू 1 करोड़ फॉर अदर्स एंड 5 करोड़ फॉर एमएसएमई। देखो अगर दूसरों का केस है तो 1 करोड़ लिमिट है, एमएसएमई का केस है तो 5 करोड़ की लिमिट है। ये बोलता है लोन इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना होने वाला है, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर कितना होने वाला है अगले साल का, उसका 20% तक आपको लोन मिल सकता है यहाँ पे, राइट, अंडर द टर्नओवर मेथड। नाम में ही टर्नओवर है देखो मेथड के, सो ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग द बेस एज प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, उसका 20%। अच्छा, बोरोवर को भी कंट्रीब्यूट करना है एटलीस्ट 5% ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल, उतना बोरोवर को भी कंप्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अबव दीज लिमिट्स बेस्ड ऑन द कैश बजट, ट्रेडिशनल साइकिल और एनी सूटेबल मेथड, इनके ऊपर भी फाइनेंसिंग हो सकती है बेस्ड ऑन योर कैश बजट, ट्रेडिशनल साइकिल या फिर कोई दूसरा सूटेबल मेथड। यहां पे फिलहाल लिमिट कितनी है, 20% की लिमिट है। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। सो 75% ऑफ द इनलैंड सेल्स कैन बी बुक डेट फाइनेंस एंड रेस्ट शुड बी बिल फाइनेंस। तो आपके बुक्स में जो डेट चल रहा है, डेटर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर 75% हो जाएगा और बाकी का किस पे हो जाएगा, आपके बिल फाइनेंस पे हो जाएगा। उसके बिल के बेसिस पे जो आप डिस्काउंटिंग करवाते हो बैंक्स में, उसके बेस पे हो जाएगा। लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर लिमिट्स ग्रेटर देन 10 करोड़ और इक्वल टू 10 करोड़, लोन कंपोनेंट एटलीस्ट 80% होगा और उसके अंदर कैश क्रेडिट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। सो दिस विल बी द लिमिट। इसका यूसीबी कैन वेरी द मिक्स, बट प्राइस एंड मॉनिटर बोथ कैन बी सेपरेटली, उनको ट्रीट करना पड़ेगा। प्राइस और जो प्राइस है उनको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे 80% आपका किस में होगा, लोन कंपोनेंट में, और 20% आपका सीसी में होगा अगर आपका लिमिट 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो। फिर आता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटरेस्ट रेट देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सेट करेंगे बैंक के, ट्रांसपेरेंटली उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। नो फोरक्लोजर पेनल्टी और फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स, फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन्स टू इंडिविजुअल। अगर कोई पर्सनल लोन आपने इंडिविजुअल को दिया है जो कि फ्लोटिंग रेट पे, उसके ऊपर आप कोई भी फोरक्लोजर पेनल्टी नहीं लगाओगे। रीसेट ऑफ फ्लोटिंग रेट्स, यूसीबीज मस्ट प्रोवाइड अ बफर और रूम फॉर ईएमआई हाइक्स। अगर कोई ईएमआई के अंदर हाइक हुआ है तो आप उसका बफर पहले से लगा के रखोगे, राइट, और सेट पॉलिसीज एज पर द सर्कुलर जो भी आए हुए हैं उनके ऊपर। लोन सैंक्शन डिसिप्लिन, अवॉइड ओरल और फोन बेस्ड सैंक्शन। तो ऑब्वियसली सब रिटर्न में ही होगा यार, ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट गिवन है आपका पूरा का पूरा। वैल्यूएशन, सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स लगेंगे फॉर प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, कम से कम 2 वैल्यूअर लगेंगे। नॉर्मली भी जो भी आप लोन कर रहे हो उसके वैल्यूअर्स लगेंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। पर अगर आपका लोन कंपोनेंट 50 करोड़ या उससे ऊपर है तो 2 वैल्यूअर्स यहाँ पर लगेंगे। एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर रीवैल्यूएशन एंड फेयर प्रैक्टिसेस, ये भी यहाँ पे की जाएगी। मॉनिटरिंग और एंड यूज होगा उसका, देखो मॉनिटरिंग की जाएगी, रेगुलर चेक्स किए जाएंगे स्टॉक स्टेटमेंट्स के, कैसे फंड आप यूज कर रहे हो और अगर कोई एनपीए तो नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के यहाँ पे साइंस देखे जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, डाइवर्जन ऑफ फंड्स का मतलब देखो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया था, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर दिया, ये भी तो डाइवर्जन है। ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स टू ग्रुप कंपनीज, आपने खुद के नाम से लोन लिया, आप ग्रुप कंपनीज में डाइवर्ट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ डाइवर्जन ऑफ फंड। रूटिंग फंड्स थ्रू अदर बैंक्स विदाउट द परमिशन, ये भी एक डाइवर्जन है। कोई साइफनिंग कर रहे हो आप फंड्स की फॉर अनरिलेटेड पर्पस, किसी और पर्पस के लिए लिया था अब किसी और पर्पस में लगा रहे हो, उसके लिए आपके ऊपर डेफिनेटली पेनल्टी लेगी। और यहाँ पेनल चार्जेस की मैं बात करूं तो कैन नॉट बी लेविड एज एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट की तरह आप पिनल चार्ज नहीं लगा सकते, एकदम ट्रांसपेरेंटली रीजनेबली लगाओगे और की फैक्ट स्टेटमेंट में आप डिस्क्लोज करोगे। प्लस अगर कोई पीएसएल लोन है जो 25,000 या उससे भी कम का है, वहां आप कोई भी पेनल्टी नहीं लगाओगे। क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग, तो यूसीबी को यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी चार्जेस हैं उनको सरसाई के अंदर देना पड़ेगा डेफिनेटली। और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन क्वार्टरली इन मल्टीपल बैंकिंग। रीस्ट्रक्चरिंग एडवांसेस की, वो भी अलाउड है। अगर आपका कोई एडवांस है जो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल है, आप उसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको फाइनेंशियली वायबल प्लान हो गया, बोरोवर का कंसेंट हो गया और फ्यूचर रीपेमेंट कैपेसिटी, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड नहीं है, मतलब आज की बात कर रहे हैं तो आज से आप आगे के लिए रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। बैकडेटेड
इसको रेट्रोस्पेक्टिव रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, वो चीज आप नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक लेंडिंग गाइडलाइंस, तो अगर ब्रिज लोन है तो टोटली प्रोहिबिटेड है, भले इनडायरेक्टली हो, ब्रिज लोन्स आर नॉट परमिटेड। रियल एस्टेट लोन है तो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये ऑल टाइप्स कमर्शियल रियल एस्टेट लेंडिंग के लिए हो सकता है, राइट। उसके लिए आपको सबके लिए बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड शुड बी इंटीग्रेटेड एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड गाइडलाइंस। फिर आता है गोल्ड लोन और सिल्वर लोन। तो अगर गोल्ड लोन है, सिल्वर लोन है, तो मैक्स टेन्योर वहां पे 12 महीने का ही होने वाला है, 12 मंथ से ज्यादा आप ये वाले लोन्स नहीं दोगे। अच्छा, इसका LTV 75% होने वाला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और बुलेट रीपेमेंट अलाउड है 2 लाख तक स्टैंडर्ड, 4 लाख तक अगर PSL टारगेट यहाँ पे मेट हो रहा है तो। नो लोन्स फॉर गोल्ड परचेज और इन्वेस्टमेंट, अगर गोल्ड खरीदना है या उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कोई भी लोन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ओके। बिल डिस्काउंटिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो बिल डिस्काउंट कर दिया जाएगा। आप किसी से पैसे मांगते हो तो आप उसका जो बिल है वो डिस्काउंट करवा सकते हो। मान लो वो पर्सन आपको 3 महीने बाद पे करेगा, आपको तो पैसा अभी चाहिए, सो यू कैन गेट दैट बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अ UCB, पर वो ट्रांजेक्शन जेन्युइन होना चाहिए, राइट। ओनली फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स विद क्रेडिट लिमिट, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए जिनके पास क्रेडिट लिमिट है। बिल अंडर LC कैन बी डिस्काउंटेड ओनली फॉर ओन क्लाइंट्स एंड रीडिस्काउंटिंग ओनली विद बैंक्स एंड NBFCs आर अलाउड फॉर स्पेसिफिक व्हीकल बिल्स। SHGs और JLGs को भी यहां पे लोन दिया जा सकता है। SHG तो हो गए आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, JLG बोलते हैं। ओके। SHG को 4x to 10x तक जो भी उनका ग्रुप सेविंग है उसके हिसाब से दिया जा सकता है, उनका ग्रुप सेविंग का 4x 10x। और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को बेस्ड ऑन द नीड, इन पे कोई भी डिपॉजिट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, और पॉलिसी यहाँ पे भी बोर्ड अप्रूव्ड होगी। KYC होगी, प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स दोनों को फॉलो किया जाएगा, भले SHG हो GLG हो, दोनों में फॉलो किया जाएगा। नेचुरल कलामिटीज अगर आ गई तो वहां पे UCBs के पास क्या होना चाहिए, डिजास्टर पॉलिसी होनी चाहिए। अभी वापस प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है, इसको आप एक रीडिंग देके खत्म भी कर सकते हो, राइट। सो मेजर ऐसे सर्कुलर्स में हमको क्या याद रखनी चाहिए, लिमिट्स इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जिसका हाई चांस है। अगर बाकी की चीजें पढ़ेंगे तो देखो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, राइट। वी नीड टू कीप इट एग्जाम ओरिएंटेड एज वेल। अगला आता है UCB एक्सपोजर नॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे कितना एक्सपोजर लिया जा सकता है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो UCB पे अप्लाई होते हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन है। टू अवॉइड, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइड क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, आपने किसी को लोन दिया, अब वो चुका नहीं रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क की अगर ऐसी सिचुएशन आ गई। ऐसा क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाए कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसी के लिए ये वाला सर्कुलर निकाला गया है। ये क्या करता है, सेट एक्सपोजर लिमिट्स कर देता है ऑन इंडिविजुअल्स, ऑन ग्रुप्स, ऑन पर्टिकुलर सेक्टर्स। इम्पोज द सीलिंग्स ऑन अनसिक्योर्ड लोन, मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लोन आप कितना दे सकते हो उसके ऊपर भी ये सीलिंग को इम्पोज करता है। प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले टियर 1 कैपिटल बताया गया कि टियर 1 कैपिटल क्या होती है, एक्सपोजर क्या होता है। देखो क्रेडिट एक्सपोजर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर हो सकता है, और अनसिक्योर्ड एडवांस क्या होते हैं, जिनकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, जिनके पीछे कोई टेंजेबल सिक्योरिटी बैकिंग में नहीं होती। टेंजेबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, राइट। सो एक कोई सिक्योरिटी नहीं है पीछे तो उसको हम अनसिक्योर्ड बोलते हैं। इसके अंदर एक्सपोजर सीलिंग, अगर इंडिविजुअल बोरोवर है तो मैक्सिमम 15% ऑफ टियर 1 कैपिटल, उससे ज्यादा आप एक्सपोजर नहीं लोगे। ग्रुप बोरोवर है मैक्सिमम 25% ऑफ टियर 1 कैपिटल। रिव्यू ऑफ एक्सपोजर लिमिट, सो एनुअली आफ्टर द बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन ये क्या होगी, लिमिट बार बार रिव्यू होगी हर साल। कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड एट हाफ ईयरली इंटरवल यूजिंग द शेयर कैपिटल फिगर्स। शेयर कैपिटल फिगर्स, अब देखो प्रॉफिट तो कंप्यूट हो नहीं सकता क्योंकि आधा साल ही हुआ है, पूरा साल होगा तो प्रॉफिट पता चलेगा ना। सो हाफ ईयरली बेसिस पे भी इसको रिवाइज किया जा सकता है शेयर कैपिटल का अमाउंट देख के। ओके। स्मॉल वैल्यू लोन्स, मिनिमम 50% ऑफ द टोटल एडवांसेस मस्ट बी स्मॉल वैल्यू लोन्स। वो कह रहे हैं आपके जो टोटल एडवांसेस हैं इसका 50% करो, इतने आपको स्मॉल वैल्यू लोन्स देने।
इतने आपको स्मॉल वैल्यू लोन्स देने। अब स्मॉल वैल्यू लोन मतलब या तो 25 लाख या उससे कम का, 25 लाख तक लोन दिया या उससे कम का, और 0.4% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल, जो भी इनमें से हायर है वो, ठीक है। अब देखो टीयर 1 कैपिटल तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसका 0.4% भी बहुत बड़ा आ सकता है। तो एक हायर कैपिंग भी लगा दी कि यार 3 करोड़ रुपए पर बोरोवर से ऊपर तो तुम जाना ही मत, ठीक है। उससे ऊपर तो हम स्मॉल लोन मान ही नहीं सकते। ओके, सबसे पहले 25 लाख या उससे कम का है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, हमारा स्मॉल लोन हो गया। टीयर 1 कैपिटल का 0.4% करो तो एक बड़ा नंबर आ रहा है, तो विच एवर इज हायर के बेसिस पे टीयर 1 कैपिटल का 0.4% भी स्मॉल लोन के अंदर माना जाएगा, बट 3 करोड़ से ज्यादा पर बोरोवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको 50% तक देनी ही है। अच्छा, ये वाला टारगेट रिवाइज भी किया है 2025, 31 मार्च 2025 तक ये 40% हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए 40% था, और 31 मार्च 2026 तक ये 60% आपको मेंटेन 50% तक सॉरी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। अभी तक 40 था, 26 मार्च तक आपको इसको क्या करना, 2026 मार्च तक आपको इसको क्या करना है, 50% पे एनी हाउ लेके आना है, सही है। तो इतना यहाँ पे मिनिमम स्मॉल वैल्यू लोन का क्राइटेरिया दे दिया, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट में एक्सपोजर कितना होगा, 25% ऑफ द टोटल लोन टू रेजिडेंशियल मॉर्गेज, ठीक है। अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज है तो मैक्स 25% तक आप टोटल लोन का एक्सपोजर ले सकते हो। कमर्शियल रियल एस्टेट है 5% तक का ले सकते हो। वर्किंग कैपिटल लोन है टू स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये छोटे मोटी चीजें, इनको रिस्क एक्सपोजर के अंदर नहीं लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंटर बैंक एक्सपोजर, तो उसके लिए अलग से गाइडलाइंस बनी है, वो गवर्न करेगी, और डिपॉजिट्स के लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं, वो गवर्न करेंगे। सीलिंग ऑन अनसिक्योर्ड एडवांसेस, यहां पे बोरोवर वाइज लिमिट दे रखी है। क्राइटेरिया यूसीबी इज हैविंग सीआरएआर इक्वल टू और मोर देन 9%, तो आपका जो सीआरआर रेशो है वो या तो 9% है या 9% से ज्यादा है, तो आपके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बेस्ड ऑन द DTL अप टू 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से 50 करोड़ है तो 2 लाख, 50 करोड़ से 100 करोड़ है तो 3 लाख, और अबाव 100 करोड़ है तो 5 लाख, ये आपको क्राइटेरिया दे रखा है। और अगर आपका CAR रेशो ही अगर 9% से कम है तो फिर यार आप तो ऑलरेडी रिस्क में हो, आप तो ऑलरेडी फायर के साथ खेल रहे हो, तो फिर वहां पे आपका लिमिट काफी कम भी किया गया है, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। एग्रीगेट लिमिट नॉर्मली लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल एसेट्स, ये आपकी एग्रीगेट लिमिट है। अगर PSL पोर्टफोलियो है ग्रेटर देन 90%, इक्वल टू और ग्रेटर देन 90%, तो 35% तक आप जा सकते हो ऑफ टोटल एसेट्स, बट RBI की परमिशन उसके अंदर आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक एग्जेम्पशन भी है, अगर छोटे मोटे अनसिक्योर्ड लोन्स आपने दे दिए, छोटे मोटे मतलब 10,000 या उससे कम के, फॉर प्रोडक्टिव यूज, ठीक है, आपका CAR रेशो 9% से ज्यादा है या 9% है, आपका टोटल ग्रॉस NPA 7% से कम है, और टोटल जो आपका एक्सपोजर हो रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15% से ज्यादा नहीं हो रहा है, राइट, लेस देन इक्वल टू 15% की रेंज में ही है, तो फिर यहाँ टाइनी लोन्स के अंदर आपका एग्जेम्पशन है। ओके, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, लोन अगेंस्ट ओन शेयर, खुद के शेयर ही लेके आप लोन दे रहे हो, वो प्रोहिबिटेड है, वो अलाउड नहीं है। डेट रिमिशन, इसके लिए RBI का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। डायरेक्टर को लोन दे रहे हो तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, किसी भी डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव को, या ऐसी फर्म जिसके अंदर वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उनको आप लोन नहीं दोगे। कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि स्टाफ लोन हो गया, लोन अगेंस्ट ओन FD, LIC और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, तो ये आप लोन दे सकते हो, ठीक है, स्टाफ को आप दे सकते हो। डायरेक्टर, उसके रिलेटिव या ऐसी फर्म को जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है, उनको आप लोन नहीं दोगे। उसके बाद लोन टू नॉमिनल मेंबर्स, तो अगर आप नॉमिनल मेंबर्स को लोन दे रहे हो तो देखो UCBs जिनके पास विथ डिपॉजिट्स अप टू 50 करोड़ है या 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ है तो 50,000 पर बोरोवर, अगर 50 करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट है तो 1 लाख पर बोरोवर इज द सीलिंग लिमिट ऑफ द लोन, ठीक है। टर्म डिपॉजिट की बात करूं, अगर दूसरे बैंक की टर्म डिपॉजिट है तो उसके अगेंस्ट में आप लोन नहीं दे सकते। अलाउड अगेंस्ट दी FD ऑफ नॉन मेंबर्स सब्जेक्ट टू दी SAB कंडीशंस, और ब्रिज लोन और इंटरिम फाइनेंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है,
ये हमने पहले भी देखा था, ब्रिज लोन्स आर नॉट एट ऑल परमिटेड। रेस्ट्रिक्शन ऑन सेंसिटिव सेक्टर, खुद के शेयर के और डिबेंचर के अगेंस्ट द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सो नॉट अलाउड टू ब्रोकर्स और कमोडिटी ट्रेडर्स। ब्रोकर को, कमोडिटी ट्रेडर को अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल को अलाउड है अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर फिजिकल फॉर्मेट में है तो 5 लाख तक पे, डीमैट में है तो 10 लाख तक पे, और मार्जिन कितना रहेगा, 50% का मार्जिन रहने वाला है, और टोटल सीलिंग इसकी दे रखी है, आप 20% ऑफ टीयर 1 कैपिटल से ऊपर नहीं जा सकते। प्रेफरेंस शेयर्स, सबऑर्डिनेटेड डेट के अगेंस्ट में आप बिल्कुल भी लोन नहीं दोगे, ठीक है। बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी, अलाउड ओनली टू हायर परचेज और लीजिंग एनबीएफसी, तो यहाँ पे एडवांस दिया जा सकता है, पर जो एनबीएफसी है वो या तो हायर परचेज वाली होनी चाहिए या लीजिंग एनबीएफसी होनी चाहिए। एक्सपोजर लिमिट, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ द एसेट देन इनकम फ्रॉम लीजिंग मैक्स 3x ऑफ द नेट ओन फंड्स, मैक्सिमम 3x ऑफ द नेट ओन फंड्स तक आप दे सकते हो। नहीं तो अगर वो अपना असेट इनकम फ्रॉम लीजिंग जो है उसका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ द असेट नहीं फॉल कर रहा है तो मैक्सिमम 2x होगा, ठीक है। यहाँ पे 3x हो रहा है, नहीं तो 2x हो जाएगा, राइट। अच्छा, एनबीएफसी अगर खुद के शेयर्स में कॉर्पोरेट इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दे रही है तो फिर ऐसे केस में एलिजिबल नहीं होने वाला, रीडिस्काउंटिंग पे भी यहाँ पे नहीं होने वाला। Equipment leasing and hire purchased by the UCBs. Now, scheduled UCBs can directly engage in the exposure limit of less than equal to 5% of the total advances each. Use prudent accounting, वहाँ पे prudent accounting follow की हुई होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर फाइनेंस है तो अलाउड ओनली टू मेंबर्स, और नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, नबार्ड्स का स्केल और आरबीआई का सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। एसएचजी का केस है तो मैक्सिमम 10x ऑफ द सेविंग। जेएलजी का केस है तो क्रेडिट बेस्ड वहां पे रहता है, राइट, हमने पहले ही देखा था। और एसएचजी लोन्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अनसिक्योर्ड सीलिंग्स, वहां पे अनसिक्योर्ड की जो सीलिंग है एसएचजी लोन को कवर नहीं करती है। जेएलजी लोन्स विदाउट टैंजिबल सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू सीलिंग, अगर उनमें कोई टैंजिबल सिक्योरिटी नहीं है तो उनके ऊपर सीलिंग्स अट्रैक्ट करने वाली है, सही है। उसके बाद देखो लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड सेल ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाय एफपीआई, इसके बारे में एक सर्कुलर आया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं उनको, कि आप शेड्यूल 1 के अंदर उनको इनवाइट किया गया है। बेसिकली ये वाला हमने पढ़ा भी था सर्कुलर, एक्चुअली डेट सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। एफपीआई कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देखो, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। 6%, 2%, 15%, याद आ गया होगा आप लोगों को, हमने पढ़ा है ये डायरेक्शन, राइट। नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्शंस, ये हमने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ा था, इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, राइट। सो इससे रिलेटेड ये चीज गिवन है आपको यहाँ पे, ये रेशो ये का यही है, ठीक है। ये रेशो चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। उसके बाद जो चीजें चेंज हुई है, इन्वेस्टमेंट लिमिट जो चेंज हुए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि करंट एफपीआई की लिमिट कितनी चल रही है अलग अलग चीजों के लिए, और रिवाइज लिमिट कितनी चल रही है। देखो 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हाफ ईयर के लिए अलग लिमिट्स हैं, बचे हुए सेकेंड हाफ ईयर के लिए अलग लिमिट्स हैं। मेरे को नहीं लगता है लिमिट्स आपको यहाँ पे याद करनी चाहिए, ओके। अगला फिर उसके बाद 9 अप्रैल को आप सभी जानते हो रेट कट्स हुए थे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था कि 25 बेसिस पॉइंट से आपके 6.2% से 6% पे अब रेट आ चुकी है। दिस इज योर रेपो रेट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक पार्ट होता है रेपो रेट, वो कितनी हो चुकी है, 6% हो चुकी है। पहले 6.25% थी, उसको 0.25 से कट किया, मतलब 25 बेसिस पॉइंट से कम किया, और अब कितने पे आ चुकी है, 6% पे आ चुकी है। अब करस्पॉन्डिंगली जब ये चेंज होती है तो दूसरी रेट्स के अंदर भी चेंज आता है। सो चेंज इन द बैंक रेट पे भी सर्कुलर निकाला कि एग्जिस्टिंग रेट कितनी चल रही है, 9.5 एंड 11.5, तो उसको कितना कर दिया 9.25 और 11.25। ये वाला भी सर्कुलर आया 9 अप्रैल को। और प्राइमरी डीलर्स के लिए भी स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। अब स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के लिए सर अलग से सर्कुलर क्यों आता है, क्योंकि ये रेपो रेट से टाइड होती है, ठीक है।
इसको रेपो रेट से टाई करते हैं, तो इसके लिए अलग से सर्कुलर निकाल के बोलते हैं कि भाई ये भी कम हो चुकी है, 6.25 से 6% हो चुकी है, राइट। उसके बाद एक और सर्कुलर आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, रिव्यू ऑफ लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर रिव्यू किया गया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लीड बैंक्स गिवन है, उनके अंदर चेंजेस है, ठीक है। ये देखो ये स्टेट स्पेसिफिक सर्कुलर है, इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ माइनर, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। आई थिंक हमने सेपरेट वीडियो के अंदर भी इसको कवर किया था। माइनर अकाउंट खोल सकता है क्या, ऑपरेट कर सकता है, तो यस खोल सकता है। माइनर्स ऑफ एनी एज मे बी अलाउड टू ओपन एंड ऑपरेट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, दे कैन ऑल्सो ओपन टर्म डिपॉजिट एफडी भी करवा सकते हैं, राइट, थ्रू देयर नेचुरल और लीगल गार्जियन, ठीक है, तो उसके केस में अलाउड है। नया अपडेट क्या आया था, माइनर्स अबाउ सच एन एज लिमिट नॉट लेस देन 10 ईयर, तो अगर 10 साल या उससे ज्यादा का माइनर है तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस दे दी गई थी पूरी तरह से, ओके। सो 10 या उससे ऊपर वो सारी चीजें यहाँ पे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको नहीं मिलने वाली है, राइट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होने वाली है। देखो माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो ऑलरेडी एज गुड एज नो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, राइट, वॉइड अब इनिशियो होता है, और आप माइनर को स्यू नहीं कर सकते, आप माइनर पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वॉइड वैलिड ही नहीं था, राइट। तो इस केस में ये वाला सर्कुलर आया कि यहाँ पे आप ओवरड्राफ्ट नहीं देख सकते, पर वो इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं अगर उनका एज यहाँ पे 10 ईयर या उससे ज्यादा है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक अब बहुत ही कम सर्कुलर्स बचे हैं, उसको हम हमारे लास्ट सेशन के अंदर कवर कर लेंगे, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उसके अंदर आपको सारे सर्कुलर से रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।